Namaste, Adab, Sat Shri Akal. On behalf of the Shared Pen Official, I, Hansmeet Kaur, co-anchor for today with pen name Hans11 and Insta profile Ink Vocals, welcome you all to this new episode of the podcast. उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे कोविड गाइडलाइंस को मेंटेन करते हुए ठीक होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे. May Almighty bless us all with the strength and hope in these hard times. So friends, like always, the Shared Pen Official has again come up knocking at their door with a very important, informative and sensitive topic, the emotional abuse. शायद कुछ लोगों का रिएक्शन इस टाइटल को सुनने के बाद होगा कि अरे इमोशनल अब्यूज जैसा भी कुछ होता है. जी बिल्कुल सही सुना आपने. आज का ये एपिसोड बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर है. आई होप हम सब के लिए एपिसोड बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहे और उसे सुनने के बाद we try to share what we have learned. And for this we have with us Ms. Shah Bisma Manzoor from Bij Bihara, Anantnag for giving clearer and detailed information about the topic. She is postgraduate in English literature and political science. She is very passionate about writing right from the day she was in class 7th. Her excellent writing skills can be seen in the several books that she has authored. Presently, she is running her own educational institute, a complete package on a whole. बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए. I welcome you ma'am with a very warm heart. Thank you so much. Thanks a lot. I too welcome the Shared Pen Official for inviting me for this podcast today. I really feel honored. Pleasure is all ours, ma'am. So ma'am, before we dig deeper into the details of this topic, I would like to request you to kindly give a brief description about emotional abuse for the listeners who are unaware of the topic, ताकि हमारे listeners के लिए एक base create हो जाए कि emotional abuse exactly है क्या. जी बिल्कुल. एक्चुअली इमोशनल अब्यूज़ के बारे में हम बहुत कम बात करते हैं एंड इवन वी डोंट एक्चुअली नो व्हाट एक्चुअली इमोशनल अब्यूज़ इज. सो before I go into details, let me briefly introduce my listeners about this. It's actually a mental assault or a mental trauma that many of us face day in and day out. So it can also be actually a manipulation of any victim's emotions. That is what we call an emotional abuse, or we can also call it a psychological violence or simply a mental abuse. थैंक यू मैम. श्योरली यू आर द मास्टर ऑफ वर्ड्स. बहुत ही खूबसूरती से आपने कम लफ्जों में ही एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया. आई होप कि सभी लिसनर्स को आइडिया लग गया होगा कि आज का पॉडकास्ट किस बारे में है. एंड मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ द शेयर पेन ऑफिशियल की, जिन्होंने इतने सेंसिटिव टॉपिक को सबके सामने रखा. So now getting into the details, ma'am, please tell us about the different types of emotional abuse. Yeah, so emotional abuse actually has several different types that we need to talk about and we need to know about. So first, it can be a verbal abuse, like you are actually screaming on anyone or unnecessarily yelling at anyone without any fault of theirs. Second, it can be calling anyone by bad names or those names that he or she dislikes, like you call anyone a fat person or he's just stumbling block, anything else. So that's what we call a bad name. It can be an isolation. You are isolating the victim from his friends, his family. It can be bullying or body shaming or purposely saying those words that actually hurt the victim. And the most important type of this emotional abuse is gaslighting, that we definitely have to talk about. Gaslighting is one of the most important types of an emotional abuse. मैम आपने गैसलाइटिंग का जिक्र किया. बड़ी ही स्ट्रेंज टर्म है. काइंडली टेल अस मोर अबाउट इट. Yeah, so if we go into detail of gaslighting, ये actually एक psychological abuse ही है जिसकी वजह से victim को ऐसा महसूस कराया जाता है that he just starts doubting himself.
he just starts doubting his own abilities. उसको ऐसा लगता है कि शायद मुझ में कुछ भी नहीं है, I can't do anything. Okay, so like if there is a person, we are saying him, or if there is a child, let me take a simple example of a child. So हमारे पास एक बच्चा आता है तो he says कि मुझे खाना दे दीजिए, मैं भूखा हूँ. So we actually turn it down and we say him कि नहीं, आपने तो अभी खा लिया है खाना, आप कैसे भूखे होंगे. So this child starts to believe that शायद मैं ही गलत कह रहा हूँ, मैंने शायद खा लिया है. So in other words, I can say that he is doubting himself. उसको मतलब शक होने लगता है. ये बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव अप्रोच है किसी के अगेंस्ट, किसी को इमोशनली अनस्टेबल करने के लिए. एग्जैक्टली लाइक इस वजह से, गैस लाइटिंग की वजह से होता है क्या है, इस विक्टिम का सेल्फ एस्टीम बहुत गिर जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, वो खुद पर फिर बिलीव नहीं कर पाता है. उसको ऐसा लगता है कि जो लोग उसको कह रहे हैं वही सच है उसके बारे में. He doesn't actually he starts to doubt himself, his every kind of ability. That's what we actually call as a gaslighting. Okay, ma'am. And ma'am, how do you see emotional abuse in the workplaces? Yeah, so emotional abuse is found in every sector, be it a workplace, a school, or a family, anything. But since you asked about this workplace, so let me brief you out about the emotional abuse in our workplace. See, we have employees there, we have bosses there. So let us suppose एक employee है, वो इस तरह से है कि किसी से ज्यादा बात नहीं करता है, okay, किसी के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करता है. He just starts to dig around his work only. उसका बस ये मुद्दा रहता है कि मैं अपने काम पे फोकस करूं, मुझे किसी से बात नहीं करनी है. तो लोग क्या करते हैं, जो उसके को-वर्कर्स होते हैं, वो उनको थोड़ा सा कोल्ड अप्रोच से बात करते हैं, उस पर हंसने लगते हैं कि सोशलेबल नहीं है, ये किसी से बात नहीं करता है, या इसको एक्सपोजर नहीं किसी से बात करने के लिए. सो इस वजह से उस बंदे पर क्या इफेक्ट होता है, इट जस्ट स्टार्ट्स टू अटैक हिम मेंटली. उस पर ऐसा लगता है कि शायद मैं यहाँ पे आई एम जस्ट द ऑड वन आउट ऑफ देयर. वो ये नहीं सोचते कि ये इतना अच्छा पोलाइटली काम करता है, इतना फोकस्ड काम करता है, सो वी शुड एनकरेज हिम. नो, रादर दे स्टार्ट कॉलिंग हिम नेम्स, दे स्टार्ट pinpointing out at him, they start to show his flaws to the world. Or like a boss, he comes and starts abusing him publicly, starts insulting him in front of his co-workers. So that sort of things that in a workplace create a sense of mental assault on him. So that is what we call we can brief out that emotional abuse at a workplace. ओके मैम, तो आई गेस शायद जो इंट्रोवर्ट्स रहते होंगे उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती होंगी, क्योंकि आई डोंट थिंक कि हर एक इंसान बहुत एक्सप्रेसिव है या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स में इतना अच्छा है कि जो भी वो फील कर रहा है वो एक्सप्रेस करे, या शायद हर एक इंसान इतना सोशल नहीं हो पाता है, वेदर इट बी अ वर्क प्लेस या कोई भी जगह. तो आई गेस ये चीज ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जरूरी नहीं कि आप जिस तरीके से लोगों को अप्रोच करें वो भी आपको उसी तरीके से अप्रोच करें. या बिल्कुल. और वर्क प्लेस में एक चीज होता है, वहाँ पर नेगेटिव इमोशंस जो है, वहाँ पर आई गेस आई कैन कॉल इट अ ब्रीडिंग हब ऑफ नेगेटिव इमोशंस. लाइक देयर इज जेलसी, देयर इज एनवी अमंग देयर इज इनसिक्योरिटी. सो ये को-वर्कर्स के बिटवीन भी इमोशनल अब्यूज हो सकता है. यू कैन फेस दिस फ्रॉम योर बॉसेस एज वेल. सो दैट इज व्हाई दीज थिंग्स इरप्ट out at workplaces, because there are different characters working at a single place. Like you just said, people can be introvert, they can't be able to share themselves with others. So that is also the reason for the emotional abuse at a workplace. Thank you. मैम, ये चाइल्ड इमोशनल अब्यूज हम टर्म सुनते हैं, ये एग्जैक्टली है क्या? जी, चाइल्ड इमोशनल अब्यूज ऐसा होता है कि आप बच्चे को मेंटली हरास करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बच्चे को मेंटल अब्यूज दे रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं उससे. एंड ये जो चाइल्ड इमोशनल अब्यूज है, ऐसा नहीं है कि आप किसी टीचर के द्वारा ही हो जाए या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ही इसका मेंटल अब्यूज हो जाए. मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस हम देखते हैं कि एक घर में भी ऐसा ही होता है. लाइक पेरेंट्स जो है, दे मेंटली टॉर्चर देयर चिल्ड्रन that they are unaware of. उनको ऐसा लगता है कि शायद बच्चे को गाइड कर रहे हैं towards the right path, but this is not so. You are actually depriving him of many kind of developments, many kind of mental improvements. If I talk of emotional abuse between a
parent and a child, so likewise हमारे पास बच्चा हमारा होता है तो हम उसको बार बार क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने मार्क्स अच्छे नहीं लाए, आपका ग्रेड अच्छा नहीं है, आप इस सब्जेक्ट में इम्प्रूव नहीं कर रहे हो. In spite of encouraging him to do the better, we just criticize. इससे क्या होता है, ये बच्चा बेचारा सोचने लगता है कि मैं इतना कोशिश करता हूँ आगे जाने की, मुझे इस पे एनकरेजमेंट मिलता नहीं है, सो बेटर कि मैं जहाँ पे हूँ मैं वहीं पे रहूँ. ही डजंट try to improve further because he knows what will be the consequences. Whether I do better or not, I will be bullied, I will be criticized for everything. So his mental growth stops, he stops there, he stops to improve further. Likewise हमारे पास घर में एक तो हम क्रिटिसाइज भी बच्चों को करते हैं बहुत ज्यादा, हम उनको करते हैं, ओके, हम उनको थ्रेटन करते हैं कि आपने ऐसा किया तो आपको ये पनिशमेंट मिल जाएगी, आपने ऐसा किया तो आपको ऐसा किया जाएगा, आपको खाना नहीं दिया जाएगा. या उनको हम, अब पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा बच्चों पर फेयर होता है, बहुत ज़्यादा हम उनको डराते धमकाते हैं कि आप ऐसा मत करो तो आपको ये सब मिलेगा, आपके पापा आएंगे उनसे बताऊंगा, फिर वो इंटिमिडेट करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं. तो इस वजह से उनका मेंटल तो आप देख लीजिए आज के बच्चे जो है, लाइक हम किसी बच्चे की बात करेंगे तो अक्सर सहमासा रहता है. जी मैम, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. This is because कि जो फाउंड आउट हो रहा है, उसके पेरेंट्स कैसे बिहेव करते, उसके रिलेटिव उसके साथ कैसे बिहेव करते, उसके एल्डर्स कैसे, बच्चा डर कैसे खुश होगा जब हम कोशिश कर रहे हैं. बच्चा कोई बात करेगा तो वी जस्ट क्रिटिसाइज हिम दैट यू आर इनफ. जी मैम, interfere to motivate a child to improve everywhere rather we demote him. जी मैम, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है. ये शायद हर एक पेरेंट को समझने की जरूरत है कि हर एक बच्चे का ग्रास्पिंग पावर और उसकी लर्निंग एबिलिटी बहुत डिफरेंट है. आप किन्हीं भी दो बच्चों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, वेदर इट बी इन एकेडमिक्स, वेदर इट बी इन एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज. आप कहीं पर भी जाकर कहीं दो बच्चों को कंपेयर नहीं कर सकते, नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे का अपना एक मेंटल ग्रोथ रेट है, हर एक बच्चे का अपना ग्रास्पिंग पावर है. इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर कोई एक बच्चा किसी एक फील्ड में अच्छा है तो दूसरा बच्चा भी उसी फील्ड में अच्छा हो. हर एक बच्चे के अपनी अपनी खूबियां हैं जो शायद हर एक पेरेंट को ध्यान देना चाहिए. और ऐसा नहीं है कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चों के लिए बुरा चाहेगा, पर ये एक शायद ये स्टेज ऐसी है, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनका मन, उनका जो मेंटल ग्रोथ है वो उस टाइम पे ग्रोथ फेज में होता है. तो इस टाइम पे शायद बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है पेरेंट्स के लिए हर एक चीज को समझकर अपने बच्चों से डील करना. और ऐसा भी थैंक यू. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट बच्चे को जी जी या उसको क्रिटिसाइज हमेशा करे था. आपके अगर हम देखेंगे ऐसा सिचुएशन आता है कि पेरेंट्स के बीच में आपस में कोई लड़ाई जाती है तो उस वजह से भी बच्चे पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से this can be also a reason for the child emotional abuse. जी मैम, आजकल बहुत ज्यादा हम केसेस देख रहे हैं, शेमिंग, बुलिंग एंड शेमिंग, बॉडी शेमिंग हो गई, ऐसे बहुत से केसेस हम देख रहे हैं. मैम, इनका क्या इम्पैक्ट है, मतलब इमोशनल अब्यूज की तरफ, मतलब ये क्या पार्ट प्ले करते हैं? Exactly, you talk about shaming or bullying. So let me first introduce what actually body shaming is. Just whenever a person mocks at the appearance, physical appearance of another person, that is what we actually call as body shaming. Okay, so body shaming जो होता है इसका बहुत ही बुरा impact होता है. I guess that is very much worse than the physical abuse that we all know. That's the worst than it. So physical abuse में होता क्या है कि आपने किसी को physically assault कर दिया, the remain there for a month, 2 or 3, but the scars that we get because of these emotional abuses, that remains life, that's there for the low self-esteem. No, when you are criticizing or mocking at a physical appearance, so that is
who created the person, who created the victim. जी मैम. When person, my physical appearance is being criticized, I'm not that beautiful as people are. They are just pinpointing out that you are not like this, you are not like that. Okay, he started. Sometimes you just thoughts. He just wants to end up his life. He just attempts to even take his life. So that is one of the worst parts that a person has to face. जी मैम. शायद फिजिकल अब्यूज में फिर भी आपको चीजें दिख जाती हैं. शायद हमें भी, जिनके साथ नहीं भी हो रहा, जो व्यूअर्स भी हैं, शायद उनको भी दिख जाता है स्कार्स के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू कि फिजिकली अब्यूज हुआ है, तो शायद हमें उस चीज का एहसास हो जाता है. पर शायद ये जो इमोशनल अब्यूज है, ये एक ऐसी छुपी हुई चीज है जो हम सबके सामने नहीं आ पाती है, लेकिन इनका इम्पैक्ट, जैसे आपने कहा, कि शायद बहुत बहुत देर तक रहता है. शायद कहीं ना कहीं कसूर, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये एडजेक्टिव है ना, जिसको हम इंग्लिश टर्म में एडजेक्टिव कहते हैं, जिसका काम था टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा एक जो रीजन है वो ये एडजेक्टिव्स का आ जाता है, क्योंकि हम इन्हीं वर्ड्स के थ्रू लोगों को डिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं. दैट यू आर अगली, यू नो, शी इज प्रिटी, शी इज मोर प्रिटियर, है ना, हम ऐसा कह देते हैं. Exactly. हम शायद बिना सोचे समझे किसी को भी, लाइक कोई हमें, ठीक है, कोई हेल्दी है, हम उस वे में उसको बॉडी शेमिंग कर लेंगे, दैट यू आर फैट, है ना. हम we cannot define a person by his appearance, उसकी कैपेबिलिटीज को you cannot define. हम ये चीज भूल जाते हैं कि अगर सेम वर्ड्स सेम तरीके से हमें कोई बोले, हमें कितना बुरा लगे. कहीं ना कहीं इन चीजों का इम्पैक्ट शायद हमारे अंदर बहुत ज्यादा पड़ जाता है. कहा है किसी ने कि खूबसूरत ना मैं हूँ ना तुम्हारी आंखें, खूबसूरत ना मैं हूँ ना तुम्हारी आंखें, खूबसूरत वो नजर है और वो सोच जो नजरिया दे रही. तो शायद ये चीज हमें देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे वर्ड्स या हम जो भी चीजें कह रहे हैं या किसी को पिन पॉइंट कर रहे हैं, वो कहीं पे भी जाके उन्हें कहीं पे भी हर्ट ना करें. Exactly, we have to keep a check on our words. We all have heard about physical abuse, sexual abuse, क्योंकि हम आए दिन खबरों में इनके बारे में पढ़ रहे हैं, सुनते हैं, देखते हैं. पर इमोशनल अब्यूज नाम की चीज भी एग्जिस्ट करती है, बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं. सो मैम, व्हाट आर द डिफरेंट साइंस या अलार्मिंग पैटर्न्स टू डिटेक्ट दिस? So before I talk about the signs of emotional abuse, इस बारे में, इमोशनल अब्यूज के बारे में बात करते क्यों नहीं है? So as you said that physical abuse, or we have domestic violence at our home, so every day in and day out we hear the cases about physical abuse, domestic violence and all that, but emotional abuse के बारे में कोई कभी बात क्यों नहीं करता? That is because I guess it's a silent punishment जो हमें नजर नहीं आता है. Like victim के पास, victim के ऊपर क्या गुजर रही है, we just don't know actually that, because that is not visible to our eyes. So for that reason, it's silent punishment, I can call it. So for that reason, we just have started to ignore these things, and the person and the victim who is facing all this, he just treats it as it's normal, because उसके साथ तो बार बार होता जा रहा है, and वो उसको as a joke लेकर छोड़ देता है, ignore कर देता है. So I guess that is the reason कि हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं. Now regarding the signs of emotional abuse, there are a lot of signs that a victim can know that I am being emotionally abused. He should know that when calling him by bad names, that is the first sign of an emotional abuse. There can be character assassination, like being assassinated. His character is being degraded. So that is another sign of the. There can be any person can scream at you constantly without any reason. बार बार आप पर चिल्ला रहा है कोई भी कारण के बगैर, हम emotional abuse ही मान लेते हैं. आप आपके फ्रेंड से करने जा रहा है या एक्सपोज करने की कोशिश करता है, so that is also one of the signs of emotional abuse. Yeah, like we discussed just now, body shaming, or we have parents at our homes that just child
emotional abuse, like belittling your abilities, criticizing rather than encouraging, they are just criticizing you. Or we have a digital spying. That's one of the most important signs of emotional abuse. Digital spying, like your partner is keeping a check on your browsing histories, asking you for your passwords, checking your email, all that, because that's also one of the signs of emotional abuse. We have some person is just unnecessarily barking at you, or there are outbursts of anger day in and day out. You are being blamed or accused for anything that you didn't do. Your decisions being valued. आपके डिसीजंस का बिल्कुल भी कोई मान नहीं रख रहा है. ऐसा लग रहा है कि आपको शायद डिसीजन पावर ही नहीं है आप में. आपको ऐसा फील करा रहा है कि आप कोई सही बात कर ही नहीं सकते हैं. एंड one of signs can also be disputing your feelings. की जा रही है, आप कैसा फील करते हैं, no one gives even a damn to it. So these are the signs of, I feel, of emotional abuse that a victim should know that अगर इतनी भी इनमें से कोई भी साइन उनको लग रहा है कि मेरे साथ हो रहा है, तो he should at least understand that I am being mentally abused, I am being psychologically abused. जी मैम, मैंने भी पढ़ा कि in a survey conducted, results showed that 15% of the people are not even familiar with the terms like verbal abuse या emotional abuse, and 35% of the people don't even know the risks या क्या symptoms हैं इसके साथ associated. शायद ये सारी चीजें पहले बहुत ही छोटे पैमाने पे स्टार्ट होती होंगी एंड फिर इस लेवल तक पहुंचती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो भी हम जैसे बड़ी न्यूज सुनते हैं कि कहीं पर भी किसी भी, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस ले लें, कहीं पर भी किसी हस्बैंड ने या कोई भी इन लॉज ने, हम सुनते हैं कि जला दिया किसी को, तो आई डोंट थिंक कि उसका पहला स्टेप ही ये रहा होगा कि उसने केरोसिन लाकर किसी भी उस पे डाल दिया एंड उसको जला दिया. आई थिंक कहीं ना कहीं उसका एक जो बेसिक, एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो पिन पॉइंट, जो स्टार्ट पॉइंट रहा होगा, वो ऐसा ही किसी इमोशनल अब्यूज का साइन रहा होगा, जिसको कहीं ना कहीं हमने, आपने, हम सब ने नजरअंदाज कर दिया. सो मैम, मूविंग फर्दर, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस दैट वी हैव टू डील विद व्हेन अ पर्सन इज डीलिंग विद दिस इमोशनल अब्यूज, या ऑन अ सोशल एस्पेक्ट क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं इमोशनल अब्यूज के? Emotional abuse, first of all, what he feels or what the impact of this emotional abuse is on his, because he day in and day out has been psychologically assaulted. ये विक्टिम जो होता है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस रहने लगा, जब इंसान को खुद पर एतमाद नहीं रहता है, self confidence, where there's no self, so that victim is to go into depressions, to remain anxious all the time. There can be chronic pains, there can be post traumatic stress disorders, that in very rare cases, if the for a long period of time, so there can definitely be post-traumatic stress disorders. That person who is the victim of emotional abuse, he always feels guilty कि हाँ मैंने तो ये सब किया है, शायद तभी तो मुझसे ये पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा किया वैसा किया, तभी मुझे blame किया जा रहा है. So he often remains in a sense of guilt. There is insomnia, he doesn't feel like there's a loss of sleep in him. He remains in constant fear. And at social level, if we talk about at social level, he is socially alienated, उसका social withdrawal हो जाता है, वो किसी से बात नहीं कर पाता है, वो खुद को बहुत ज्यादा अकेला फील करता है. So these are few of the impacts of emotional abuse on the victim that is being harassed emotionally and mentally. Okay ma'am, thank you. Ma'am, क्या ऐसे तरीके हैं या क्या ऐसे मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए या किसी को लेने चाहिए जब वो इमोशनल अब्यूज के दौर से गुजर रहा, लाइक हाउ टू डील विद इट? या तो आप इमोशनल अब्यूज हो रहा है, उनको तो साथ ये एंड जिस कि सबसे पहले उनसे आराम से बात करें, उनको समझाए कि आप जैसा कर रहे हैं गलत है. रिलेशनशिप इस सो राइट समझ रहा है
समझ नहीं रहा, he just continues with his behavior, so you just have to disengage. Now after that खुद को प्रायोरिटाइज करिए। सबसे पहले लोग आपके बारे में जो just abilities, just explore yourself and face you and have self-confidence, gain self-confidence. You just कि बस हाँ मैं ही गलत हूँ, जो भी ये बोल रहा है कि वही सब गलत है, just stop blaming yourself. ब्लेम करना स्टॉप कर, आपको खुद की इज्जत करना सीखिए, आप कर सकते हैं। बट आप यू argue with the person, you don't argue with the emotional abuser, because इससे क्या होता है, इससे चीजें बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है। rather stop being with him, just disengage from him, all your ties with that person if it reaches to that level, and just start believing in yourself that I am the best, I am the perfect, and whatever I do it right, I have the abilities in me, so no one will be able to emotionally blackmail or assault you. जी मैम, थैंक यू सो मच, दैट वाज रियली इंफॉर्मेटिव। आपने बहुत ही कम लफ्जों में आपने पूरा एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। मैम, हमारे लिसनर्स के लिए कोई एक फाइनल मैसेज जो आप देना चाहेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड, आप कोई भी मैसेज उनको देना चाहेंगी, वो इन सब चीजों से कैसे डील करें या इनको कैसे समझें, अगर कोई भी मैसेज आप देना चाहें? Yeah, so I guess हमारा जो आज का टॉपिक था, that was very much fruitful, and that definitely would have made the listeners aware of if they are being emotionally abused or not. So last message जो मेरी तरफ से होगा to all the listeners, I just want to say that believe in yourself. You are the best at your own place. Don't think what the world says you. Don't try to please the people around you. Just please yourself. Just please your creator. You will be doing the best. Don't think of the people. Just let them go. Whatever they say, just let them. You just have to believe in yourself. You just have to trust your abilities. You will do the best. Very beautiful words, ma'am. Thank you so much. आप यहाँ पर आए, आपने अपने व्यूज हम सब के साथ शेयर किए, अपनी नॉलेज हम सब के साथ बांटी। I'm really grateful to you, ma'am. I'm really thankful to you all for giving me this opportunity. I just loved the segment. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. एंड में मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि हम में से किसी ने इन सब चीजों को फेस नहीं किया। तो हम इस टर्म के साथ हो सकता है कि हम जानते नहीं हैं कि एग्जैक्टली ये जो चीज हमारे साथ हुई थी कभी वो इमोशनल अब्यूज था, पर हम सब ने कभी ना कभी ये फेस किया है। हम अक्सर अपने घरों में, लोकेलिटी में, सोसाइटी में ऐसी बहुत सी चीजों को देखते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, शायद पार्ट ऑफ लाइफ समझकर। स्पेशली फॉर गर्ल्स, हमें स्टार्टिंग से सिखाया जाता है टू बी पेशेंट। नो डाउट पेशेंस इज एसेंशियल, इट इज इम्पोर्टेंट, बट अप टू व्हाट एक्सटेंट एंड टुवर्ड्स व्हाट, ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ लाइंस अपने लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहूंगी। लकीली मदर्स डे का भी माहौल है। आई होप अगर कोई मदर्स, माएँ अपने घरों में बैठकर इस पॉडकास्ट को सुन रही होंगी तो वो इन लाइंस के इमोशंस के साथ कनेक्ट करेंगी, ना सिर्फ माँ, उनकी बेटियां, डॉटर्स एज वेल। आई होप कि इन लाइंस का जो इमोशन है ना, जो मदर्स अपने लिए वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पाई कभी, वो पार अपनी ऑफस्प्रिंग, अपने डॉटर्स तक पहुंचा दें। आई जस्ट होप कि आपका कुछ इमोशनल कनेक्ट बने इन लाइंस के साथ, और जो एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहती हूँ वो पहुंच जाए। क्यों तेरी आंखें हैं नम, क्यों तू सोई है कम, क्यों तू कहती नहीं जो तुझे कहना है। क्यों तेरी आंखें हैं नम, क्यों तू सोई है कम, क्यों तू कहती नहीं जो तुझे कहना है। तेरे नक्शे कदम पे क्यों चलती रहूं, हक है माँ मुझे खुश रहना है। So with this, I bid you goodbye. I hope like always इस बार भी द शेयर्ड पेन ऑफिशियल की ये कोशिश आप सब ने सिर्फ पसंद नहीं की होगी, बल्कि आप इस बार बहुत सी बातों पर अमल भी करेंगे और उसे साथ लेके जाएंगे। With this,
आई से गुड बाय। खुद का बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखिएगा, कोविड गाइडलाइंस को मेंटेन कीजिएगा, ना सिर्फ फिजिकल मेंटल बल्कि इमोशनल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिएगा। सो दिस इज मी हंसमीत कौर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज एंड चढ़ती कला।